Very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed few of the important practical problem related to the last chapter of part B, that is in cash flow statement. And you know very well, the cash flow statement is prepared on the basis of the guidance and rules given by the AS3 revised. And you know very well, cash flow statement is prepared by almost all the types of the company, but it is our responsibility to give the additional knowledge is that which type of the company have to prepare the cash flow statement. तो पहले उसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि किस तरह की कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है। बेसिकली जो 1% कंपनीज होती हैं उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी डिसाइड की गई हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर कि अगर वो कंडीशन कुछ कंपनीज फॉलो कर लेती हैं तो उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी हो जाता है। जैसे प्लीज नोट डाउन, ICAI हैव इशूड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICAI had issued accounting standard मतलब AS, accounting standard 4, accounting standard 3 revised for preparing a cash flow statement, okay, as well as this AS has been made mandatory in respect of accounting period commencing on or after 1st April 2001 for certain enterprises। तो याद रखना है, this AS an accounting standard becomes mandatory for specific enterprise with effect from 1st April 2001। मतलब कि 2001 के बाद अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो कुछ स्पेसिफिक एंटरप्राइजेस को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी हो गया है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, enterprise whose equity or debt securities are listed on स्टॉक एक्सचेंज, जिनका इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटी यानी शेयर या फिर डिबेंचर लिस्ट होता है कहां पर, इट विल बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। एंड नंबर 2, all other enterprise whose annual turnover exceed from ₹50 करोड़, मतलब वो जैसे अगर
कोई एंटरप्राइज है जिसकी सिक्योरिटीज चाहे डेप्थ हो चाहे इक्विटी हो, सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उन्हें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है। लेकिन अगर लिस्टेड नहीं है तो सिचुएशन में हम उसके एवरेज टर्नओवर पे फोकस करेंगे। एवरेज टर्नओवर मतलब कि वो एक साल में कितना सेल करता है। अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा सेल करता है, इसका मतलब ये है कि उसे क्या करना होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें यू नो वेरी वेल कैश की मीनिंग गिवन है, कैश इक्विवेलेंट की मीनिंग गिवन है, और फ्लो की मीनिंग गिवन है, स्टेटमेंट की मीनिंग गिवन है। तो ये डिफरेंट मीनिंग्स गिवन है, इसको आप अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, so what is question number 14? Question number 14 says that calculate cash from operating activities from the following balance sheet of Himalaya Limited, and the balance sheet are given: equity and liability, shareholder fund, share capital, reserve and surplus, non-current liability, long-term borrowing, current liability, trade payable, assets, non-current assets, fixed assets, and non-current investment, and trade receivable, cash and cash equivalents. And the notes to account is also given: reserve and surplus, general reserve, profit and loss balance, long-term borrowing, 9% debenture, fixed assets, machinery, less accumulated depreciation, which is also known as a provision for depreciation, and rate of interest on investment is 8% per annum. And the additional information is also given regarding this question. The additional debenture were issued on 1st April 2017, and additional investment were made on 1st April 2017. So this is a question, the complete question which are related to the operating activity. So without creating delay, let's start the question number 12. Question number 13, the first question of the cash flow statement to calculate the cash flow from operating activity. So for this purpose, you know very well, first of all we prepare the format, and you know very well the format is a very interesting part of the cash flow statement. So first of all we write down the cash flow from operating activities. Okay, so this is a cash flow from operating activity, and first of all you know very well we have to write down the net profit before tax and extraordinary items. But in this question you know very well the net profit before tax is not given. In this question the profit will be shown in the reserve and surplus column. So that's why we have to find out the note number 1. So for this purpose please see the note number 1. Okay, so note number 1 is say that जब हम उसकी वर्किंग नोट पे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ वर्किंग नोट बना रहे हैं, सो फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग नोट यू नो वेरी वेल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा दैट इज कि सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का फॉर्मूला होता है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। सो करेंट ईयर की वैल्यू है आपकी 50,000 और प्रीवियस ईयर की वैल्यू है माइनस 20,000। ये माइनस 20,000 क्यों है, क्योंकि करंट ईयर में प्रॉफिट है और प्रीवियस ईयर में आपको था लॉस। इसका मतलब है कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों मिलाकर आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ है, 70,000। क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर आपका लॉस था और करंट ईयर आपकी प्रॉफिट है, तो जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डिफरेंस ना होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। जैसे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 50,000 में से अगर आप प्रीवियस ईयर की वैल्यू माइनस करेंगे, प्रीवियस ईयर ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ऐड हो जाएगा चीज़। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अब इसमें हम लोग ऐड क्या क्या करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर हमने जनरल रिजर्व क्रिएट किया, यस जनरल रिजर्व कितना क्रिएट किया है, पहले था 1 लाख, अब हो गया 1,20,000, तो 20,000 हमने क्रिएट किया। और साथ ही साथ हमने कोई डिविडेंड पे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट, कोई टैक्स पे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही आपका आ गया 90,000। इट विल बी अ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका, इसमें सबसे पहले हम लोग राइट डाउन करते हैं डेप्रिशिएशन, एंड यू कैन सी दैट प्रीवियस ईयर का डेप्रिशिएशन था 1,10,000, करंट ईयर का डेप्रिशिएशन है 1,50,000। सो डेप्रिशिएशन करंट ईयर का आपका हो गया 40,000। और आपने इंटरेस्ट भी पे किया है, ड्यूरिंग ईयर आपने क्या पे किया है, इंटरेस्ट भी पे किया है। कितना इंटरेस्ट पे किया है वो आपको निकालना पड़ेगा डिबेंचर में, क्योंकि इंटरेस्ट डिबेंचर पे कितना परसेंट है, 9%। और क्वेश्चन में क्लियरली कह रहा है एडिशनल डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2017, यानी ओपनिंग में डिबेंचर था 1 लाख और एट द एंड ऑफ द ईयर द डिबेंचर विल बी 1,50,000। सो जो ड्यूरिंग द ईयर आपके डेट, मतलब 1 लाख तो पहले से थे आपके पास डिबेंचर, उस पर तो आप इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, 9% के हिसाब से। लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर आपने डिबेंचर इशू किया 50,000, 1 लाख से कितना डिबेंचर हो गया, 1,50,000। सो जो 50,000 आपने एडिशनल डिबेंचर इशू किया है उस पर भी आप 9% की रेट से क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे, क्योंकि इसका इशू कब हुआ है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के स्टार्टिंग में, तो उस पर भी आप होल ईयर का क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। अगर ये मिड में होता या एंड में होता तो उस हिसाब से आपका जो डिबेंचर का उसका पीरियड है, इंटरेस्ट का पीरियड है, वो रिड्यूस हो जाता। तो ये हो गया आपका 9,000, ये हो गया 4,500, ये हो गया 13,500। सो इट इज एन इंटरेस्ट पेड। उसमें से माइनस करते हैं आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड किसमें क्या होता है, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखिए क्वेश्चंस में, तो विच आर गिवन इन द नॉन करंट एसेट्स, पहले था 40,000, नाउ इट विल बी 50,000। तो पहले 40,000 का इन्वेस्टमेंट था, 50,000, तो 40,000 पे आपको 8% से इंटरेस्ट मिला ही होगा एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन। और ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इशू किया है, 10,000, तो 10,000 पे भी आप 8% से आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा फॉर होल ईयर, बिकॉज ऑफ आपने पूरे साल भर के लिए क्या किया है, इशू किया है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि बिगनिंग में ही आपने डिबेंचर भी इशू कर दिया, बिगनिंग में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3,200 प्लस 800, इट विल बी 4,000। ओके, सो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। सो 90,000 में 40,000, 30,500 ऐड करने के बाद और 4,000 घटाने के बाद ये आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और ये वैल्यू कितनी होगी, दिस इज द वैल्यू, उस वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करेंगे। वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। 90 × 40 130, 130 है 1,39,500 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन। आप भी चेक कर लेना, अगर कुछ मिस्टेक्स होगी तो प्लीज इन्फॉर्म मी। अब हम उसमें करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करेंगे। करंट लायबिलिटी में है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल की वैल्यू देखिए, पहले थी 60 एंड नाउ इट विल बी 40, घट गई। तो ट्रेड पेबल घटता है तो माइनस ही करते हैं, कितना है 20,000। एंड करंट एसेट्स में आओ, ट्रेड रिसीवेबल पहले था 1,14,000, अब हो गया 83,000। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी में, उसके इंक्रीज डिक्रीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। सो 1,14,000 में से 83,000 घट गया, ट्रेड रिसीवेबल घट गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे। कितना हो गया, डिफरेंस निकाल लो, 1,14,000
माइनस 83,000, ठीक है, डिडक्ट कर लो। 14 ये हो गया और 17 ये हो गया, ये हो गया 31,000। ओके, सो 20,000 डिडक्ट करना है 1,39,500 में, और हमें 31,000 ऐड करना है। तो नेट अगर हम देखें तो हमें 31,000 ही क्या करना है, 11,000 क्या करना है, ऐड करना है। ये आ जाएगा 1,50,500 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इस क्वेश्चन में हमें ये भी ध्यान रखना है कि सर, इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स पेड नहीं है। और जब इनकम टैक्स पेड नहीं है, इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गॉट इट? इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 विथ प्रॉपर वर्किंग नोट्स एंड विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। प्लीज नोट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13. The next question will be question number 11b. The question number 11b says that calculate cash from operating activities, profit and loss balance, trade receivable, provision for depreciation, outstanding rent payable, prepaid insurance, goodwill and inventories. So first of all, you know very well, सबसे पहले हम लोग क्या राइट डाउन करते हैं, सबसे पहले राइट डाउन करते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। बट यहाँ पे कोई टैक्स, कोई रिजर्व का वो नहीं है, तो यही आपकी प्रॉफिट क्या कहलाएगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट है 20,000, करेंट ईयर की प्रॉफिट है 30,000, सो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इट विल बी 10,000। ठीक है, नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन जैसे लाइक नॉन कैशेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेकर, तो नॉन कैश एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन था आपका 30,000, नाउ करेंट ईयर का है 32,000, सो ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रोविजन हो गया 2,000। उसी के साथ साथ गुडविल जो थी पहले थी 20,000, नाउ हो गई 16,000, तो ये हो गया आपका गुडविल रिटन ऑफ, एंड द वैल्यू इज 20,000 से हो गया 16,000, 4,000 और ये हो गया 16,000। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। WCC का फुल फॉर्म होगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे ट्रेड रिसीवेबल पहले था 14, अब हो गया 18, बढ़ गया, तो यू नो वेरी वेल ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है, तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि एसेट्स है, कितना बढ़ रहा है 4,000, तो उसको क्या करेंगे माइनस। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी क्या है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या हो रही है 1,600 रुपये से लेकर 4,000 हो जा रही है folks, तो ये आपकी बढ़ रही है, उसको प्लस करेंगे, कितना डिफरेंस निकाल लो, 4,000 माइनस 1,600, 2,400। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले 1,400 था, 1,200 हो गया। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस आपका क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट्स होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 1,400 से 1,200 हो रहा है, घट रहा है, प्लस कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ गुडविल, गुडविल का एडजस्टमेंट हो चुका है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज पहले थी 14,000, अब हो गए 18,000, बढ़ गए, तो इन्वेंट्रीज ऐसा होती है, उसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, माइनस करेंगे, क्योंकि ये करंट एसेट्स है 4,000 और ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो हमने क्या किया, पहले ये कैटेगराइज किया कि कौन सी एसेट्स करंट एसेट्स है, कौन सी करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी घट रही है, जैसे ट्रेड, करंट लाइबिलिटी क्या है, इसमें करंट
ट्रेड रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट्स। आउटस्टैंडिंग क्या है? करंट लायबिलिटी। प्रीपेड क्या है? करंट एसेट्स। और इन्वेंट्रीज भी क्या है? करंट एसेट्स। तो इन जो भी करंट एसेट्स हैं आइटम्स, उन सब के साथ हम अपोजिट बिहेवियर करेंगे। अगर वो बढ़ेंगे तो उनको प्लस करेंगे, घटेंगे तो माइनस, सॉरी बढ़ेंगे तो माइनस करेंगे, घटेंगे तो प्लस करेंगे। और लाइबिलिटी के साथ सिमिलर बिहेवियर, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट आप क्वेश्चन में देखिए 1600 से 4000 हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको मैथमेटिक्स क्या किए? प्लस। अब उसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, 8000 डिडक्ट करेंगे, तो 16000 में से 8000 गया तो बचा 8000। 8000 में 2600 ऐड करना है तो आंसर आ जाएगा 10600। दिस इज योर आंसर एंड इट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड, क्योंकि इसमें से अभी तक इनकम टैक्स माइनस नहीं किया गया है, तो उसको आपको अच्छे से कॉपीज में नोट कर लीजिए। ओके, फॉर दिस पर्पज यू नो वेरी वेल, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं? प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। So after completing a lots of the numerical questions, let's we move to the next topic while we preparing the cash flow statement and especially the calculation while we calculate the cash flow from operating activity. The very important adjustment is provision for taxation. Provision for taxation. You know very well, if we create a provision for paying a tax during the year, अगर हम टैक्स को पे करने के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, so it is our liability, the short term liability, short term provisions. So but there is a separate information given about the provision for taxation. So suppose in the question there are basically few cases related to the provision for taxation. The case number 1, if single value is given, if single value is given regarding provision for tax, मतलब कि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के रिगार्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है। मतलब क्वेश्चन में बस इतना बता दिया है कि जी हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या 20,000 रुपये क्रिएट किया। सो ये आपका सिर्फ एक सिंगल वैल्यू है, एक ही वैल्यू गिवन है। तो सिचुएशन में उसी वैल्यू को, यानी उस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, उसी को हम मेड भी मान लेते हैं, उसी को हम पेड भी मान लेते हैं। और मेड को हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में। मतलब कि जब हम लोग नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ हम इसको ऐड कर देते हैं और डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं। कहाँ से? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको क्या कर लेते हैं? डिडक्ट कर देते हैं, ताकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट कर सकें। दूसरा केस क्या होगा? केस 2 ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए if previous year amount and current year amount of provision for taxation are given, मतलब जब क्वेश्चन में दो वैल्यू गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की, प्रीवियस ईयर की वैल्यू भी गिवन हो और करंट ईयर की वैल्यू भी गिवन हो, तो जब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों की वैल्यू गिवन होती है तो हम इस सिचुएशन में प्रीवियस ईयर को पेड मानते हैं और करंट ईयर को मेड मानते हैं। पेड मतलब इसे हम लोग क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। और जो मेड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? सेम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में और डिडक्ट करते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन केस 3 जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। केस 3 ये कहता है कि मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन
के साथ साथ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन है। इफ एडजस्टमेंट is given regarding provision for taxation with previous year and current year amount। मतलब कि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी गिवन है, प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स भी गिवन है। तो इस सिचुएशन में वी हैव टू प्रिपेयर दी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इस सिचुएशन में हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते हैं। कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। इस सिचुएशन में बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट और वो अकाउंट बनता है इस तरह से, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ये है बाई बैलेंस बीडी और ये है टू बैलेंस बीडी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू बैंक, यानी हमने कितना इनकम टैक्स पेड किया, और यहाँ लिखते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ ईयर कितना हमने मेड किया। टू बैंक का मतलब है कितना हमने पेड किया, और बाई स्टेटमेंट ऑफ ईयर का मतलब होता है कितना हमने मेड किया। सिमिलरली केस नंबर 3 को जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि इस केस में केस नंबर 1 एंड 2 तो वेरी इजी, बट क्वेश्चन नंबर 3 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सेज दैट प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रीवियस ईयर 2,30,000, 2016 का, 2017 का 1,90,000, and the additional information is also given during the year income tax paid was 2,30,000। सो आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। कैसे बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट? क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रीवियस ईयर की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? प्रीवियस ईयर की वैल्यू है आपकी 1,90,000, सॉरी 2,20,000। करेंट ईयर की वैल्यू कितनी गिवन है? 1,90,000, और एडजस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन नंबर 34। क्या गिवन है? आपने टैक्स मेड किया है अकॉर्डिंग टू द टैक्स पेड किया है 2,30,000। तो जब आप इक्वल करेंगे दोनों साइड, दोनों वेरिएबल, एक लेजर का दोनों साइड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो जब आप इक्वल करेंगे तो यू विल गॉट इट कि इधर आ रहा है टोटल आपका 4,20,000, इधर भी कितना आना चाहिए 4,20,000, डिफरेंस कितना आया 2 लाख। सो यही 2 लाख आपका क्या है, मेड है। सो आपने अकाउंट बनाकर ये फाइंड आउट कर लिया कि कितना आपका टैक्स मेड हो गया। ये जो मेड हो गया इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और इस पेड को आप लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। यही है बेसिक थीम रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 34। आप इसमें अकाउंट बना के आपको बता देना है कि इसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। उसी तरह से सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली उसमें आप लोगों को इस बात पे फोकस करना है कि ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स इज ऑल्सो गिवन, एंड टैक्स मेड इज गिवन। सो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, टैक्स मेड गिवन। क्वेश्चन नंबर 35 में जब आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस विल बी ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज 150, क्लोजिंग 1,34,000, और इन दिस क्वेश्चन द इनकम टैक्स मेड इज गिवन। इनकम टैक्स मेड इज गिवन, मेड गिवन है,
मेड कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? मेड इज 1,70,000. सो टोटल इज 3,20,000. इधर भी कितना आना चाहिए? 3,20,000. तो 1,34,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3,20,000, तो आपका पेड निकल कर जाएगा 1,86,000. आपका क्या आ गया? Please note down the solution of the question number 34 as well as the question number 35 to understand how we will prepare the provision for taxation account in case of the case number 3. And the case number 3 is if adjustment is given regarding provision for taxation as well as the amount of previous year and current year. Okay, so please note down.